Hello guys, in this video we will see the connection between the golden ratio and the Fibonacci sequence. I hope that you are familiar with the Fibonacci sequence. ठीक है? And you in computer science it is famous sequence. There is a program of to write the terms of a Fibonacci sequence using the recursion. ठीक है? So first of all we will see what is golden ratio. The golden ratio is often denoted by the Greek letter phi, also called as phi. This is an irrational number, ठीक है, and its value is approximately equal to this 1.618033, something like that, and it is algebraically defined as 1 plus square root of 5 divided by 2. ठीक है, तो गोल्डन रेशियो क्या होता है, नंबर होता है, उसको फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव, एंड इट्स वैल्यू इज 1.618, ठीक है, समथिंग. दिस इज एन इरेशनल नंबर, सो इट डज नॉट टर्मिनेट, ठीक है, एंड डज नॉट रिपीट, ठीक है. सो इट्स प्रॉपर्टीज दैट this is an irrational number that's just like pi, ठीक है, meaning it cannot be expressed as a simple fraction and its decimal representation goes on forever without repeating. So there is a relation between the Fibonacci sequence, ठीक है. So what is the relation? First of all you should know about the Fibonacci sequence. So the Fibonacci sequence is a sequence of numbers where each number is the sum of the two preceding ones, ठीक है. मतलब बताते हैं, पहला नंबर जो होगी इनिशियल कंडीशन, पहला दो नंबर 1 1 हो गए, थर्ड नंबर जो होगा वो इन दो प्रीसीडिंग का सम होगा तो 2, ठीक है. फोर्थ नंबर इज सम ऑफ 2 and 1 3, फिर नेक्स्ट इज 3 and 2 सम 5 8, ठीक है, एंड दिस गोज ऑन. सो दिस इज अ Fibonacci sequence. It can be defined recursively as f of n is equal to, या f of n plus 2 is equal to preceding, ठीक है, preceding. So it's f of n plus 1 plus f of n, ठीक है, with initial conditions f of 1 is 1 and f of 2 is also 1, ठीक है. So this is a recursively defined the Fibonacci sequence, ठीक है. तो f1 is 1, f2 is 1, तो first two terms of the sequence is 1. So from f3 is equal to f2 plus f1, so it's the sum of the preceding ones, ठीक है, sum of the two preceding ones. Okay, so in the same way it goes on forever. This is a sequence, ठीक है. तो होता है क्या कि रिलेशनशिप टू Fibonacci sequence, द रेशियो ऑफ सक्सेसिव Fibonacci नंबर्स अप्रॉक्सीमेट्स द गोल्डन रेशियो, ठीक है. जो गोल्डन रेशियो था ना हमारा 1.618 विच इज एल्जेब्रिकली डिफाइंड एज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 by 2. तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f of n plus 1 अपॉन में fn इज नथिंग बट द phi which is 1.618 और 1 प्लस रूट 5 by 2, ठीक है. ओके, तो इसमें क्या किया हमने, जैसे कि आपकी कोई सीक्वेंस है a n इज इक्वल टू n, डाइवर्जेंट है, लेकिन आप a n प्लस 1 अपॉन में a n ले लोगे तो n प्लस 1 अपॉन में n एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विल बी 1. ओके, तो कन्वर्जेंट हो सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, उसकी मैंने क्या कहती है सक्सेसिव रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स ले लिए हैं, ठीक है, सीक्वेंस के. तो इसमें भी हमने ऐसे ही किया है, f of n plus 1 अपॉन में fn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. मान लो कि सीक्वेंस है rn इज इक्वल टू f of n plus 1 अपॉन f of n, ठीक है. तो R1 क्या हो जाएगा आपकी पहली टर्म, तो ये हो जाएगा F2 अपॉन F1, तो ये F1 है ये F2 है, तो 1 by 1, ठीक है, दिस इज योर R1.
R2 इज F3 अपॉन F2, तो F1 ये है, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, दिस इज F4, ठीक है. सो वी आर टेकिंग, ठीक है, रेशियो सक्सेसिव फिबोनाची नंबर्स, ठीक है. सो 1/1, 2/1, फिर 3/2, 3/2. तो हो क्या रहा है, अगर ध्यान से देखो, दिस इज 1/1, 1 + 1 2, फिर ये वाला 1 इधर आ गया, फिर 2 + 1 3, ये वाला 2 इधर आ गया, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 3 + 2 5, 3 यहाँ आ गया, फिर 5 + 3 8 अपॉन में 5, फिर 5 + 8 एंड सो ऑन, ठीक है. ये सीक्वेंस आपकी R1 है, ये फर्स्ट टर्म है R1, ये R2, दिस इज R3, दिस इज R4, this is R5, and this is R6, and we will prove that this sequence Rn will converge to the golden ratio phi, which is 1.618 approximately. This is an irrational number, so this is a sequence of rational which converges to an irrational number. Okay, rationals are dense, so given any real number, in fact rational number, you will find a sequence of rational which converges to that number, ठीक है. Another famous example is 1 + 1/n raised to the power n. This is a sequence of rational and it converges to the number e, which is irrational. Okay, and also one thing you can note, that if you solve this quadratic equation x² - x - 1, ठीक है, if you solve the root, then the positive root of this equation is nothing but the golden ratio. It have two roots, ठीक है, a is 1, b is -1, c is -1, so discriminant b² - 4 is c, so 1 - 4 to ac, 1 into -1 -1, तो डिस्क्रिमिनेंट 5 आ गए, तो रूट क्या आ जाएंगे, -b, तो 1 ± √d / 2a. So these are the two roots of this equation. Quadratic equation है, so it must have two roots. So positive roots जो होगा वो गोल्डन रेशियो ही है, ठीक है. इस इक्वेशन का जो रूट है ना, तो यू कैन डिफाइन द गोल्डन रेशियो एट द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक equation, ठीक है. You can define any real number as the limit of some rational sequence, ठीक है. Any real number is nothing but the limit of some rational sequence, ठीक है. In the same way, the root of this positive root of this equation is nothing but the golden ratio phi. Okay, this is a negative root. Root 5 is some 2 point something, ठीक है. root 4 is 2, so root 5 is 2 point something, so this number will be negative, ठीक है, the positive root of this equation. ये मैंने बता दिया. चलो हम प्रॉब्लम करते हैं. तो ये प्रॉब्लम है आपकी, the sequence defined recursively by f1 is equal to 1, f2 is equal to 1, f of n plus 2 is fn plus f of सबस्क्रिप्ट में n+1 लिख दिया है, ठीक है. जैसे सीक्वेंस में हम a सबस्क्रिप्ट n लिखते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं a of n, ठीक है, a1 a2 a3, ठीक है. जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग. तो दिस इज अ फिबोनाची सीक्वेंस. लेट Rn इज f of n+1 अपॉन में fn बी द सीक्वेंस ऑफ रेशियोज of successive terms of the Fibonacci sequence. Then we have three parts. In part A, we have to show that this relation R1 is strictly less than R3 is less than R5 ... less than R6 less than R4 less than R2. In second part, we have to show that this limit R2n minus में this subsequence of even term minus subsequence of odd term, this limit will tends to 0. And the third term, we have to deduce that the sequence Rn converges from A and B also, ठीक है. From part A and B we have to deduce that the sequence Rn is convergent
and we have to find the what does it converge with values. ठीक है, can you find a way to determine the limit? This is related to the root of the equation x square minus x minus 1 equal to 0. ठीक है, इसी का रूट क्या आता है, इसका पॉजिटिव रूट इज़ नथिंग बट दी, अभी बता दिया था 5. ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले बता दिया. ठीक है, सो सब पता है आपको. फिबोनाची सीक्वेंस पहली दो टर्म f1 1 है, f2 भी 1 है. ठीक है, किसी किसी एग्जाम्पल में f1 को 0 भी डिफाइन कर लेते हैं, f2 को 1, फिर f3 जो होगा वो प्रीसीडिंग टू टर्म्स का सम होगा. ठीक है, fn जो होगा नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू टर्म्स, एंड दिस सीक्वेंस गोज ऑन फॉर एवर, एंड दिस इज डाइवर्जेंट ऑफ कोर्स. Okay, this is a divergent sequence, Fibonacci sequence. But if you consider the sequence of the ratio of successive term of the Fibonacci sequence, then it is convergent and it converges to the golden ratio phi. We will prove that. Okay, so it's nothing but Fibonacci sequence 1 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 8 13 21 and goes on. ठीक है, दिख रहा है दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, फिबोनाची सीक्वेंस इज अनबाउंडेड. ओके, आर एन इज एफ ऑफ एन प्लस 1 अपॉन में एफ एन. तो आर वन इज आर एन इज न्यू सीक्वेंस, इज फिबोनाची सीक्वेंस. आर वन इज ठीक है एफ टू बाई एफ वन. दिस इज एफ वन, ये दिस इज एफ टू, दिस इज एफ थ्री, दिस इज एफ फोर, दिस इज एफ फाइव, दिस इज एफ सिक्स, F7 F8. ठीक है, तो R1 इज F2 बाई F1. तो F2 बाई F1 इज 1. R2 इज F3 बाई F2. तो F3 बाई F2 तो 2/1. ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, F2 बाई F1 R1 था ना, तो 1/1. ठीक है, R2 था F3 बाई F2. फिर R3 हो जाएगा आपका F4 बाई F3, तो 3/2. तो अब ये मैंने बता दिया था वैसे आपको. ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें. 1 + 1 2, फिर ये वाला डायगनल 1 यहाँ आ रहा है, 2 + 1 3, ये डायगनल इधर आ रहा है पैटर्न में. ठीक है, नेक्स्ट हम देखोगे आप 5/3 आएगा. ठीक है, F5/F4. तो आपने क्या करो, इन दोनों को सम कर लो, 5 अपॉन में ये वाला डायगनल 3, 5/3, फिर 8/5, फिर 13/8, 21/13 एंड गोज ऑन. ठीक है, दिस इज योर एंड ओके. This is your R1, this is your R2, this is your R3, this is your R4, this is your R5, this is your R6, this is your R7. ठीक है, in part A we have to show that the sequence of odd number subsequence is strictly increasing and the even number subsequence is strictly decreasing. This relation we have to show, right? So this first of all see R1, R3 and R5 and see this relation, this inequality hold or not. ठीक है, R1 is 1, R3 is 3/2 which is 1.5 and R5. ठीक है, ऑड वाली उठा लिए सबसिक्वेंस. ठीक है, R of 2n minus 1, 8/5 जो होगा 1.6 आएगा. ठीक है, R3 3/2 1.5, तो 1.6. R3 is less than R5 and this is, you can see that 21/13 will be bigger than R5. ठीक है, R7. तो ऑड वाली सीक्वेंस इंक्रीजिंग आ गई है. ठीक है, ओके. Fibonacci sequence is not monotonic but it has monotonic subsequence. Okay, you can see first term is 1, second term is 2, third term is 1.5. so it's fluctuating. ठीक है, it's not going in one direction either right or left. For monotonic sequence it should be going one direction if we plot the numbers on the real number line, a real line.
ठीक है। अब R2 देखोगे तो R2 2 आ रहा है, R4 5/3 आ रहा है जो उससे कम ही होगा, ठीक है। तो R2 इज बिगर, R4 इज छोटा आ रहा है, फिर R6 13/8 भी मोर लेस, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, यही रिलेशन आपको प्रूव करना था, R1 लेस देन R3 लेस देन R5 डॉट डॉट और लेस देन R6 R4 R2, ठीक है। दिख रहा है R2 2 है, फिर R4 जो 5/3 है कमी होगा, ठीक है। कितना होगा ये 1.6, ठीक है, समथिंग। तो इट विल बी लेस देन R2। सो आपको क्या मिल गया, ए पार्ट में आपने ये शो कर दिया जो आपको शो करना था, ठीक है। तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है कि जो R ऑफ ऑड नंबर वाली सीक्वेंस है, दिस सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस Rn is strictly increasing. R1 is less than R3 is less than R5, so it's going in this direction, right? So this is monotonically increasing, or you can say strictly increasing, anything, ठीक है। monotonically decreasing sequence, subsequence of Rn, and since it is bounded monotonically increasing, not decreasing, ठीक है। R1 लेस देन R3 इज लेस देन R5, ठीक है। इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस ऑफ Rn एंड इट इज़ बाउंडेड अबव बाई R2, R1 इज़ 1, ठीक है, R2 इज़ 2, ठीक है। सो इट इज़ कन्वर्जेंट। सो लेट्स से इट कन्वर्जेस टू, कि मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड अबव मीन्स कन्वर्जेंट, राइट। सो लेट्स से इट्स कन्वर्जेस टू L1 एंड R2 n, this is a subsequence of Rn, ठीक है, and it is strictly decreasing, R2 is सबसे बड़ा, then R4 is smaller than R2, R6 is smaller than both R4 and R2, ठीक है। so it is going in this direction, ठीक है। so this is monotonically decreasing subsequence of Rn and it is bounded below by 1, right. so it will be convergent. So let's say it converges to L2 if anyhow, so ठीक है। you can also note that the sequence Rn lies between 1 to 2 for all n belongs to natural number, right, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, कोई भी सीक्वेंस R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो, R5 है, R4, सब 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, और R1 पे 1 है, R2 पे 2 है, ठीक है। तो Rn इज़ ए बाउंडेड सीक्वेंस, ओके। तो इसकी ये सब सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो भी बाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ऐसे भी बोल सकते हो यू, ठीक है। तो L1 को कन्वर्ज कर रही है, L2 को कन्वर्ज कर रही है। इफ़ समहाउ अगर मैं प्रूव कर दूं कि L1 इज सेम एज L2, then this is complementary pair of subsequences. If it converges to the same limit, then the sequence Rn is convergent and it converges to L1, okay. तो सेकंड पार्ट में आपको यही बोला गया है, शो डेट R2n माइनस में R of 2n minus 1 टेंड्स टू 0, ठीक है। इफ़ एनी हाउ आई प्रूव डेट R2n, ठीक है, this is convergent, तो is convergent to R2n minus 1 is convergent to L1, R2n converges to L2. If I prove that L1 is L2, then their difference will converges to 0, ठीक है। ऐसे ही बोला गया सेकेंड वाले में, यही तो प्रूव करना है। इसका मतलब क्या, लिमिट ऑफ R2n इज सेम एज लिमिट ऑफ R of 2n minus 1, ठीक है। xn minus yn tends to 0 as n tends to infinity means limit of xn is same as limit of yn, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो सीक्वेंस Rn कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इफ समहाउ आई कैन प्रूव दिस, सो लेट्स सी कैसे प्रूव करें इसको। आपको Rn क्या गिवन है, f of n plus 1 by fn,
ठीक है, इसी में जो हम कुछ करके देखते हैं। आर एन इज एफ ऑफ एन प्लस वन अपॉन में एफ एन। तो आपको एक आइडिया ऐसे आ सकता है कि आप R1 R2 R3 ये सब लिख दो तो सब कुछ टर्म्स कट जाएगी, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ R1 R2 Rn माइनस वन समथिंग कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे कुछ आपको उससे रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो आप करके देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन में वो वर्क कर जाता है लेकिन इसमें वर्क नहीं करेगा। ठीक है, R1 R2 R3 अप टू Rn लिख दो, फिर ये सब कटेंगे। ठीक है, R1 जो होगा वो F2/F1 होगा, R2 जो होगा वो F3/F2 होगा। ठीक है, तो F2 कट जाएंगे ना प्रोडक्ट करोगे तो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो f ऑफ n प्लस वन को आप फिबोनाची सीक्वेंस है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू टर्म्स। ठीक है, तो f ऑफ n प्लस में f ऑफ n माइनस वन अपॉन में f ऑफ n। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आर एन आपका ऐसे लिख सकते हो, आर एन इज इक्वल टू वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन अपॉन में एफ एन। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर एन इज इक्वल टू वन प्लस, अब ये तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, आर एन क्या है आपका, नीचे एफ एन है और उसके ऊपर एफ ऑफ एक सफिक्स ज़्यादा है, यहाँ एन है तो एन प्लस वन है, यहाँ एन है तो ऊपर एन प्लस वन आना चाहिए तब आर एन बनता, लेकिन आप इसको वन अपॉन में एफ एन अपॉन में एफ ऑफ एन माइनस वन लिखो, तो ये क्या बन जाएगा आपका आर एन माइनस वन बन जाएगा, नीचे एफ ऑफ एन माइनस वन फिर एक सफिक्स ज़्यादा। तो ये आपका क्या एक रिलेशन बन गया, रिकरेंस रिलेशन, वन आर एन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन में आर ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, सो दिस रिलेशन, एक आपको रिलेशन मिल गया है। ठीक है, और आपने क्या ये शुरू कर दिया था कि आर ऑफ टू एन माइनस वन एल वन को कन्वर्ट कर रहा है, आर ऑफ टू एन एल टू को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये सब सीक्वेंस एल वन को कन्वर्ट कर रही है, कन्वर्जेंट तो है लेकिन सेम लिमिट को कन्वर्ट कर रही है, ये प्रूव नहीं किया हमने। ठीक है, एल टू को कन्वर्ट कर रही, तो आपने सीक्वेंस देखी होगी जिसमें टर्म्स वन माइनस वन या 1 0 1 0। ठीक है, जिसमें इवन वाली अलग कन्वर्ट कर जाती है, ऑड वाली अलग कन्वर्ट कर जाती है। ठीक है, तो इवन वाली और सब सीक्वेंस और ऑड वाली सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो हम ये नहीं बोल सकते कि सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इट मस्ट कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। ठीक है, तो हमें L1 इज इक्वल टू L2 प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, n की जगह, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, तो n की जगह 2n लिख दो, तो r ऑफ 2n इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन में, ठीक है, आर एन क्या है, आर एन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन में आर ऑफ, ये सफिक्स थी उसमें से एक घटा दिया है, तो यहाँ 2n है तो यहाँ आर ऑफ 2n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और आर ऑफ 2n किसको कन्वर्ट कर रही है, L2 को कन्वर्ट कर रही है। अब लिमिट लगा लो, तो L2 इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन में L1, तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया बिटवीन L1 एंड L2। लेकिन अब इसको आप सॉल्व करने जाओगे, आपको L1 L2 को बराबर लाना है, तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस वन, और यहाँ पे L1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L1 L2 ऐसे करके, तो आपको ऐसा कुछ रिलेशन नहीं मिलेगा L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो रिलेशन आया ना आपका, इसको A1 बोल दो, चलो ठीक है, इसमें n की जगह 2n रखा, फिर n की जगह क्या रखो आप, 2n माइनस वन रखो, ऑड वाला, n की जगह क्या रख दो, 2n माइनस वन, तो ये क्या बनेगा आपका, r ऑफ 2n माइनस वन इज इक्वल टू, इनकी जगह 2n माइनस वन रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2n माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, वन प्लस वन अपॉन में, ठीक है, तो ये ऑड वाली है। अब लिमिट ले लो, n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये किसको कन्वर्ज कर रही है, L1 को,
यहाँ से आपका आ गया L1 इज इक्वल टू 1 प्लस ये E1 वाली सब सीक्वेंस बनेगी ना, तो ये 1 अपॉन में L2, ये L2 को कन्वर्ट करेगी, E1 वाली है, तो ये एक और रिलेशन आपको मिल गया बिटवीन L1 एंड L2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से सॉल्व करो, इसको A मानो, इसको B मानो। ठीक है, A और B को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो L1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन में L2 है। ठीक है, फ्रॉम B, और L2 क्या है आपका, ये L1 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ L2 को, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी इन L1, फिर मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, L1 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका L1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन में L2 क्या है आपका 1 प्लस 1 बाई L1, तो 1 प्लस 1 बाई L1। तो ये L1 में इक्वेशन दिख रही है आपको, ये क्वाड्रेटिक बनेगी L1 में। ठीक है, करके देखो, L1 प्लस 1 और ऊपर L1, यहाँ से आपका मिल गया ये, तो 2L1 प्लस 1। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, L1 स्क्वायर प्लस L1 इज इक्वल टू 2L1 प्लस 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो मिल रही है, अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो L1 स्क्वायर माइनस L1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो अभी हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके जो दो रूट आते हैं 1 प्लस रूट 5/2 1 माइनस रूट 5/2, ये नेगेटिव रूट होता है, ये पॉजिटिव रूट होता है, और ये नथिंग बट दिस इज गोल्डन रेशियो 5। ठीक है, ये 1 प्लस रूट 5/2, तो कैलकुलेशन वही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, इसके रूट जो आएंगे दो रूट आएंगे, और सीक्वेंस जो है वो L1 जो है ना, सीक्वेंस जो है, ठीक है, R ऑफ 2n माइनस 1 जो है 1 और 2 के बीच में ही होगी ना, क्योंकि Rn 1 और 2 के बीच में था, तो इसकी जो लिमिट होगी 1 और 2 के बीच में होगी, मतलब कि नॉन नेगेटिव लिमिट होगी, ग्रेट 1 और 2 के बीच में होगी लिमिट। तो दूसरी लिमिट तो हम लेंगे नहीं, इसके दो रूट आएंगे ना, तो L1 की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो 1 माइनस रूट 5/2 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि L1 शुड बिलोंग्स टू क्लोज इन बाउंडेड इंटरवल 2,3। ठीक है, बिकॉज सीक्वेंस की टर्म 2 और 3 के बीच में है, तो इसकी सब सीक्वेंस की टर्म भी 2 और 3 के बीच में होगी, तो लिमिट भी इसके बीच में आनी चाहिए, और क्लोज बाउंड, और जो बाउंड्री है उसको भी क्लोज लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से L1 आ गया आपका 1 प्लस रूट 5/2, इसका रूट सॉल्व करोगे तो, ठीक है, दिस इज़ योर L1। दिस इज़ नथिंग बट दी 1.618 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, एंड इट इज़ ए also a algebraic number because it is a root of a polynomial whose coefficients are integers, x square minus x minus 1 इसका रूट है, जैसे polynomial with integer coefficients, so it is will be a algebraic number। ठीक है, so irrational numbers can be algebraic, rational numbers are all algebraic। ठीक है, but there are numbers which are not algebraic called transcendental number like e, pi। okay, and a set of algebraic numbers is countable। okay, transcendental numbers is uncountable। इनकाउंटेबिलिटी में आपने टर्म सुनी होगी। तो L1 ये आ गया। ठीक है आपका, अब L2 यहाँ पे ध्यान से देखो, L2 क्या है, L1 था 1 प्लस में 1/L2, और L2 था 1 प्लस में 1/L1। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, मुझे एक इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन L1। अब L2 है आपका 1 प्लस में 1/L1, और L1 है आपका 1 प्लस में 1/L2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये L1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका L2, कुछ नहीं होगा, ये इक्वेशन सब स्टेप सेम है। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, L1 और L2 का रोल ही तो चेंज कर दिया है, इंटरचेंज।
ठीक है, सिमेट्रिक है ना ये L1 L2 में। तो यहाँ L2 का स्क्वायर माइनस में L2 माइनस 1 इक्वल टू 0। L2 जो है वो सब सीक्वेंस की टर्म्स है जो वो भी उसकी जो लिमिट है 2 से लेके 3 नेगेटिव वाला हम रूट ओमिट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो L2 की भी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, L1 इज इक्वल टू L2। तो इसका मतलब इवन वाली सब सीक्वेंस भी सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही है, ऑड वाली सब सीक्वेंस भी सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, कन्वर्जेंट तो है वो और सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही है दोनों। तो इसका मतलब Rn इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू दी जो सब सीक्वेंस इस पर कन्वर्ज कर रही है, मतलब कि 1 प्लस रूट 5/2। दिस विल बी योर लिमिट। ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया कि Rn कन्वर्जेस टू 1.618 गोल्डन रेशियो। ओके, तो ये कनेक्शन है बिटवीन दी गोल्डन रेशियो एंड दी फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, मे बी देर विल बी एनी अदर मेथड टू प्रूव B पार्ट B। ठीक है, इफ़ यू प्रूव A एंड B देन C it will be easy। ठीक है, if you prove B, maybe there is some other method। Yeah, in my mind this method comes, so I do by this method। okay, so we have proved that the ratio of successive Fibonacci numbers converges to the golden ratio phi, which is 1 plus root 5/2। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f of n plus 1 upon में fn is 1 plus root 5/2। okay, I hope that you enjoy this problem। thank you।